Hello, one and all, especially my dear and loving students. I hope you are fine and well. So, this is Ruksar Madam, and today I am here with a Standard 9, Chapter 1 Rise of British Rule in India. So, without wasting time, let's start the explanation. But before starting my explanation, as I always says to you, if you haven't read the chapter once, then you must read the chapter, then you can go through my video explanation. Okay? That's good. So dear student, the chapter 1 is Rise of British Rule in India. I hope you will get a clear insight into the chapter through its topic. The chapter is from history and it is totally based about that how the British rule increased in India. How the British rule rise in India, how the Britishers got control in our India, how the Britishers emerged as a political power in India. So the totally chapter number 1 is available about that how the Britishers rule on India about 200 years. Because we all know that previously our country was enslaved by the Britishers. They ruled on our country about 200 years. So let's read the chapter in detail and I am going to explain you line by line the chapter. Okay? So are you ready? So here we go. Since the ancient period, India has enjoyed an incomparable position in the whole world due to its economic, cultural and religious inheritance. We all know India is a country, distinct country in the whole world. ओके इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो सभी कंट्री से अलग है, उसकी एक इनकम्पेरेबल पोजीशन है जिसे हम किसी भी कंट्री के साथ कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमिक, कल्चरल एंड रिलीजियस इनहेरिटेंस, जो उसे इनहेरिटेंस में मिला है, उस वजह से हम इंडिया को किसी भी अदर कंट्री के साथ कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज इंडिया हैव इनकम्पेरेबल पोजीशन इन होल वर्ल्ड. ओके, ड्यू टू the economic prosperity and cultural inheritance, people from different nation of the world came to India. Now इंडिया की जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है और उसका कल्चरल इनहेरिटेंस है, उससे अट्रैक्ट होके डिफरेंट जो अदर नेशंस है वो अट्रैक्ट होकर वर्ल्ड के जो डिफरेंट नेशन है इंडिया के इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और कल्चरल इनहेरिटेंस से अट्रैक्ट होकर कहाँ पर आए? इंडिया आए. ठीक है. There was a lot of demand for the Indian spices, muslin, silk, cloth, indigo, etc. in European countries. Now there were lots of demand of Indian commodities. Indian जो products है उसकी काफ़ी demand थी. Just like Indian spices, muslin एक तरह का cloth आता है, silk cloth, indigo, etc. यूरोपियन जो countries है उसमें Indian products की बहुत ज़्यादा demand थी. ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप वॉज कैरिड आउट थ्रू लैंड रूट एंड सी रूट. जो इंडिया और यूरोप के बीच का जो ट्रेड हो रहा था, प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज, वो लैंड रूट एज वेल एज सी रूट दोनों से हो रहा था. एट द सेंटर ऑफ दिस रूट वॉज इस्तांबुल. एंड व्हाट इज द सेंटर ऑफ बिटवीन दिस टू रूट्स? इन दोनों रूट्स के बीच का सेंटर इस्तांबुल था. इस्तांबुल में कॉन्स्टेंटिनोपल इन तुर्की. ठीक है. After the conquest of Constantinople in 1453 AD by Turkish Muslims, what's going on now? Turkish Muslims जो है उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल को कॉन्क्वेस्ट कर लिया था, मतलब जब्त कर लिया था, अपने कंट्रोल में ले लिया था इन 1453 AD में. Then suddenly the sea route through Constantinople, Istanbul was closed for the Europeans. और तुर्किश मुस्लिम्स ने क्या किया? दे स्टॉप सी रूट फॉर यूरोपियंस. जो यूरोपियंस के लिए जो सी रूट है उन्होंने स्टॉप कर दिया. सिंस दे कुड नॉट डू विदाउट द स्पाइसेस. नाउ द यूरोपियंस कुड नॉट स्टे विदाउट द इंडियन स्पाइसेस. वो इंडियन स्पाइसेस के बिना नहीं रह पा रहे थे. द यूरोपियंस फेल्ट कंपाइल्ड टू डिस्कवर ए न्यू सी रूट. तो यूरोपियंस को कहीं ना कहीं ज़रूरत लगी. दे हैव टू फाइंड अनदर वे बिकॉज दे कुड नॉट स्टे विदाउट इंडियन स्पाइसेस. इंडियन स्पाइसेस के बिना वो नहीं रह पा रहे थे. दैट्स वाई दे फेल्ट दे हैव टू डिस्कवर अ न्यू सी रूट टू इंडिया.
So an era of geographical discovery began. Then after, so an era, एक era चला geographical discovery का. Now everyone is trying to find a sea route to another route to India. Okay. Now let's see next one. Discovery of sea route to India. Now everyone is trying, an era of geographical discovery begins. So everyone is trying to find out the sea route to India. So let's see who actually find the sea route to India and what's going on. With the inspiration, encouragement and economic help from the Portuguese king Prince Henry, some brave people began effort to discover new sea route. So जो प्रिंस हेनरी है पोर्टुगीज के, उनके थ्रू इंस्पिरेशन और एंकरेजमेंट और इकोनॉमिक हेल्प मिलने की वजह से बहुत सारे जो ब्रेव सेलर्स है उन्होंने इफोर्ट की. दे हैव पुट देयर एफोर्ट टू फाइंड आउट द न्यू सी रूट टू इंडिया. इंडिया का नया सी रूट फाइंड करने के लिए उन्होंने बहुत सारी एफोर्ट्स की और इसके लिए उन्हें कहाँ से एंकरेजमेंट और इकोनॉमिक हेल्प मिली थी? पोर्टुगीज किंग उन्हें प्रोवाइड कर रहे थे जिनका नाम था प्रिंस हेनरी. ओके. मैनी ग्रेट मैन ट्राई टू डिस्कवर सी रूट टू इंडिया, नेमली बार्थलोमिया डियाज हु डिस्कवर्ड द केप ऑफ गुड होप. सो मैनी मैन ट्राई टू डिस्कवर, बहुत सारे मैंस ने ट्राई किया इंडिया के सी रूट को फाइंड करने का. ठीक है. तो उसमें से कुछ सेलर्स थे, जैसे कि कुछ मैन थे ग्रेट मैन जिसका नाम था बार्थलोमिया डियाज. उन्होंने क्या फाइंड किया था? उन्होंने केप ऑफ गुड होप फाइंड किया था. ओके. विद द इकोनॉमिक असिस्टेंस फ्रॉम द किंग ऑफ स्पेन. ठीक है. किंग ऑफ स्पेन के इकोनॉमिक असिस्टेंस के थ्रू क्रिस्टोफर कोलंबस बिगेन हिज एडवेंचर ऑफ डिस्कवरिंग एन न्यू सी रूट टू इंडिया. ठीक है. किंग ऑफ स्पेन के इकोनॉमिक असिस्टेंस मिलने की वजह से क्रिस्टोफर कोलंबस, अनदर सेलर, उसने अपना एडवेंचर स्टार्ट किया इंडिया का न्यू सी रूट फाइंड करने के लिए. विच अगेन केम टू अ स्टॉप एट एन आइलैंड प्रेजेंटली नोन एज वेस्ट इंडीज. ठीक है. उन्होंने अपना एडवेंचर क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्टार्ट तो किया, विच अगेन, बट वो कहाँ जाकर स्टॉप हुआ? एट एन आइलैंड, एक आइलैंड पे जाकर स्टॉप हुआ. प्रेजेंटली उस आइलैंड को हम वेस्ट इंडीज नाम से जानते हैं. सिचुएटेड इन अटलांटिक ओशियन, और ये आइलैंड करंटली अटलांटिक ओशियन में सिचुएटेड है. ठीक है. कोलंबस हु हैड बिलीव्ड थ्रू आउट हिज लाइफ दैट ही हैड डिस्कवर्ड ए न्यू सी रूट टू इंडिया. कोलंबस एक ऐसे सेलर थे जो जब तक वो रहे अपनी पूरी लाइफ वो ऐसा मिसकॉन्सेप्शन में रहे कि ही हैड फाइंड आउट द सी रूट टू इंडिया, बट ही हैवेंट, उन्होंने फाइंड नहीं किया था. हैड एक्चुअली डिस्कवर्ड अ न्यू लैंड, उन्होंने सी रूट टू इंडिया तो फाइंड नहीं किया था, बट ही हैड एक्चुअली डिस्कवर्ड अ न्यू लैंड, एक नई लैंड उन्होंने फाइंड की थी. Since this clarification was made by Amerigo Vespucci, this new land began to known as America. Now, जब उन्होंने एक न्यू लैंड फाइंड की थी तो since this clarification, और जो न्यू लैंड उन्होंने फाइंड की थी उसका क्लेरिफिकेशन किसने दिया? एमरिगो वेस्पुची ने दिया था. उन्होंने कहा था दिस न्यू लैंड बिगेन टू नोन एज अमेरिका. उन्होंने क्लेरिफिकेशन देते हुए कहा था कि जो क्रिस्टोफर कोलंबस ने न्यू लैंड फाइंड की है उसे किस नाम से जाना जाएगा? अमेरिका. ओके. ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्टली यू अवेलेबल अ फिगर 1.1. इन दैट वन मैप इज गिवन टू यू दैट इज अबाउट सी रूट टू इंडिया. वो मैप आपको दिया गया है, उसमें बताया गया है कि इंडिया के सी रूट के बारे में बताया गया है. वाटरवेज, ऑल अबाउट द वाटरवेज. यूरोपियन नेशन हैव देयर लैंड रूट एंड वाटरवेज टू एंटर इनटू इंडिया. जो यूरोपियन नेशंस है उनके वाटरवेज, वो कौन से वाटरवेज यूज़ कर रहे थे और इंडिया में एंटर होने के लिए, और कौन से लैंड रूट यूज़ कर रहे थे. यू कैन सी स्टैंड फॉर Constantinople and the simple black line stand for old waterways and that dotted line stands for new sea route to India. Okay, we will see next. So the next, the Portuguese sailor Vasco da Gama discovered the sea route to India in 1490 AD. Okay,
So here the real actual man who discovered the sea route to India, new sea route to India. Now वास्को डी गामा कौन थे जिन्होंने एक्चुअली में न्यू सी रूट टू इंडिया फाइंड आउट किया था. ही इज द पर्सन. When he reached Calicut in western coast of India, he was welcomed by the King Zamorin. When Vasco da Gama reached Calicut in western coast of India, इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट से वास्को डी गामा कलिकट पहुँचे तो वहाँ पर उनका वेलकम किंग जमोरिन ने किया. ठीक है. एंड अलाउड टू कैरी आउट बिजनेस देयर. और उन्होंने किंग जमोरिन ने उन्हें परमिशन भी दे दी कि वो वहाँ पर ट्रेड कर सकते. ही कैन कैरी हिज ट्रेड ओवर देयर. ओके. Thus, this is considered as an important event in world as the open the door for other Europeans to come to India. So, to finding this new sea route to India, it's considered a new is considered as an important event. उसे important event माना जाता है because इस events ने other European nations के लिए door open कर दिए थे इंडिया में आने के लिए. Okay. So next, turn the page. Okay. Then after arrival of Europeans to India, यूरोपियन नेशन से लोग इंडिया में किस तरह से आए. ठीक है. दैट विल बी गिवन नेक्स्टली यू ऑन द पेज नंबर 4. अराइवल ऑफ द ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड सेंटर. ब्रिटिश लोग कैसे इंडिया में आए और उन्होंने किस तरह से अपने ट्रेड सेंटर हर जगह इंडिया में एस्टेब्लिश किए. The Portuguese were the first to arrive in India for trade after the discovery of the sea route to India. As we all know, Vasco da Gama is a Portuguese. He is native of Portuguese. Okay. So, the first who entered after the discovery of sea route to India, जो first आए इंडिया में sea route की discovery होने के बाद, that is Portuguese. Okay. विदिन अ स्पान ऑफ 100 ईयर्स, बहुत ही कम समय में यानी 100 ईयर्स के टाइम पीरियड में द पोर्टुगीज टुक कंट्रोल ऑफ सेवरल टेरिटरीज लाइक दीव, दमन, गोवा, कोचीन, मलक्का एटसेट्रा. विदिन द स्पान ऑफ 100 ईयर्स के टाइम पीरियड में पोर्टुगीज ने क्या किया. दे टुक कंट्रोल ओवर सेवरल टेरिटरीज. इंडिया की कुछ टेरिटरीज पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया, जैसे दीव, दमन, गोवा, कोचीन, मलक्का एटसेट्रा. इन सारी जगह पर पोर्टुगीज का कंट्रोल हो गया था. ठीक है. देन आफ्टर इंस्पायर्ड बाय द पोर्टुगीज सक्सेस इन द ट्रेड, द डच फ्रॉम हॉलैंड एंड द डेनिश फ्रॉम द डेनमार्क अराइव्ड इन इंडिया फॉर ट्रेड. इंस्पायर्ड बाय द सक्सेस इन ट्रेड बाय द पोर्टुगीज. पोर्टुगीज की सक्सेस को देखते हुए डच पीपल फ्रॉम हॉलैंड, डच पीपल जो हॉलैंड से है वो, और डेनिश जो डेनमार्क से, वो लोग भी इंडिया में ट्रेड के लिए एंटर हुए. द इंग्लिश ट्रेडर्स एस्टैब्लिश द ईस्ट इंडिया कंपनी टू कैरी आउट ट्रेड विद इंडिया. जो इंग्लिश ट्रेडर्स थे उन्होंने कौन सी कंपनी एस्टैब्लिश की इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए. दे एस्टैब्लिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया टू ट्रेड विद इंडिया. ओके. इन 1600 AD, when Queen Elizabeth of England gave the permission to East India Company to carry out trade with the eastern countries, then 1600 AD में जब क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड में रूल कर रही थी तो उन्होंने क्या किया. क्वीन एलिजाबेथ ने परमिशन दे दी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो अपना ट्रेड ईस्टर्न कंट्रीज के साथ कैरी कर सकते हैं. द फर्स्ट शिप देन आफ्टर, जैसे उन्हें परमिशन मिली, द फर्स्ट शिप अंडर द लीडरशिप ऑफ कैप्टन विलियम हॉकिंस अराइव्ड इन सूरत. जैसे ही क्वीन एलिजाबेथ से ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिल गई तो पहला शिप किसकी लीडरशिप में, अंडर द लीडरशिप ऑफ कैप्टन विलियम हॉकिंस की लीडरशिप में कहाँ पर आया, सूरत में आया इंडिया में. ठीक है. बट ड्यू टू द डोमिनेंस एंड ओपोजिशन फ्रॉम द पोर्टुगीज, सो जब ब्रिटिश आए उससे पहले पोर्टुगीज ऑलरेडी इंडिया में रूल कर रहे थे. ठीक है. दे हैव देयर ट्रेडिंग सेंटर्स इन इंडिया. सो जब वो सूरत में आए तो क्या हुआ, बट ड्यू टू द डोमिनेंस एंड ओपोजिशन फ्रॉम द पोर्टुगीज का रूल वहाँ चल ही रहा था, वो लोग वहाँ से ट्रेडिंग कर रहे थे, इसलिए पोर्टुगीज ने अपने स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए
क्या किया, ब्रिटिश जो इंग्लैंड से जो ब्रिटिशर्स आए थे उनके सामने ओपोजिशन किया, ठीक है। दे वेर नॉट अलाउडेड टू एस्टेब्लिश द ट्रेड दैट, उन्होंने उन्हें मना किया कि दे विल नॉट अलाउ, उनको अलाउ नहीं करेंगे कि वो अपना ट्रेड सेंटर कहाँ पर डाले, सूरत में। बट फाइनली द ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द परमिशन फ्रॉम द मुगल एम्पायर, लेकिन फाइनली जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे परमिशन मिल गई मुगल एम्पायर के पास से अपना ट्रेड कहाँ पर कैरी करने के लिए, सूरत में। किसके थ्रू मिली वो परमिशन, जहांगीर, एंड thus the British East India Company established its first center in सूरत। उन्हें ट्रेड करने के लिए परमिशन मुगल एम्परर जहांगीर ने प्रोवाइड की थी और फाइनली ब्रिटिश ने अपना फर्स्ट ट्रेड सेंटर सूरत में एस्टेब्लिश किया इन 1613 AD, सूरत में कोठी जो जगह है वहाँ पर, ठीक है। इनिशियली द कंपनी एस्टेब्लिश्ड इट्स ट्रेड सेंटर इन सूरत, भरूच एंड अहमदाबाद। इनिशियली जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, शुरुआत में उसने अपने ट्रेड सेंटर कहाँ पर एस्टेब्लिश किए, कंपनी एस्टेब्लिश्ड इट्स ट्रेड सेंटर इन सूरत, भरूच एंड अहमदाबाद। उन्होंने, कंपनी ने अपने इनिशियली स्टार्टिंग बेस पर अपने जो ट्रेडिंग सेंटर है 3 जगह पर एस्टेब्लिश किए, सूरत, भरूच एंड अहमदाबाद। But due to the strong presence of Marathas in the region, the company sensed danger to its existence and hence moved toward the south and east direction, where they set up their centers in Machilipatnam, St. George and Fort William. So, इनिशियली उन्होंने 3 जगह पर अपने कंपनी ने अपने ट्रेडिंग सेंटर एस्टेब्लिश किए, सूरत, भरूच एंड अहमदाबाद। बट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ मराठास इन दैट रीजन, लेकिन उस रीजन में मराठास की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होने की वजह से कंपनी को अपने एग्जिस्टेंस पे डेंजर लगा। कंपनी फील दैट ही इज नॉट सेफ हियर, सो उसके एग्जिस्टेंस को कंपनी को डेंजर लगा, तो हैंस कंपनी मूव टूवर्ड द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। कंपनी कहाँ मूव हो गई अपने ट्रेडिंग सेंटर को लेकर साउथ और ईस्ट डायरेक्शन में मूव हो गई। वेयर दे सेटअप दर सेंटर, और वहाँ पर उसने अपने दोबारा से सेंटर एस्टेब्लिश किए, ट्रेडिंग सेंटर कहाँ पर एस्टेब्लिश किए, दैट इज मछलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है, सेंट जॉर्ज जो चेन्नई में है, एंड फोर्ट विलियम जो कोलकाता में है, ठीक है। देन आफ्टर मुंबई बिकम दर हेडक्वार्टर इन 1687 AD, एंड फाइनली 1687 AD में उन्होंने मुंबई को अपना हेडक्वार्टर बना लिया ट्रेडिंग का, ओके। देन आफ्टर द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अराइव्ड इन इंडिया फॉर ट्रेड इन 1668 AD। आफ्टर दैट फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अराइव्ड इनटू इंडिया फॉर ट्रेड in 1668 AD. After the Britishers, French East India Company arrived into India. इंडिया में आती है 1668 AD में अपना ट्रेड करने के लिए, and eventually set up the trade center in Mahe, Karaikal, Pondicherry, Chandranagar, Machilipatnam, etc. ठीक है। Then after what's going on? आफ्टर द ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद फ्रेंच लोग इंडिया में आए अपना ट्रेडिंग सेंटर एस्टेब्लिश करने के लिए, अपना ट्रेड एस्टेब्लिश करने के लिए। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश की उन्होंने 1668 AD में, एंड इवेंचुअली सेटअप द ट्रेड, उन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर कहाँ पर एस्टेब्लिश किए, माहे, कैरकल, पौंडीचेरी, चंद्रनगर, मछलीपट्टनम एटसेट्रा, इन सारी जगह पर उन्होंने अपने ट्रेड सेंटर एस्टेब्लिश किए। नाउ यू हैव टू रिमेंबर दैट ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, बोथ कंपनीज आर टोटली डिफरेंट, ओके। In the 18th century, the English and the French were constantly busy establishing their rule in entire world and conquering more territories. Now in 18th century में क्या चल रहा था, इंग्लिश एंड फ्रेंच वो दोनों कॉन्स्टेंटली बिजी थे। किस चीज़ में बिजी थे वो लोग, अपना रूल पूरे एंटायर वर्ल्ड में एस्टेब्लिश करने में, ठीक है। वो लोग चाह रहे थे कि वो लोग एंटायर पूरे वर्ल्ड में अपना रूल एस्टेब्लिश करें, ठीक है, एंड कंक्वायरिंग मोर टेरिटरीज, और हर जगह अपनी टेरिटरीज बना ले, ठीक है। बिटवीन 1746 एंड 1763
There were three Mysore war between the French East India Company and the British East India Company in India, which the French East India Company lost. Now between टाइम पीरियड दिया है आपको बिटवीन 1746 एंड 1763, ये जो टाइम पीरियड है, इन टाइम पीरियड के बिटवीन में देयर वर थ्री मैसूर वॉर बिटवीन, तीन मैसूर वॉर हुए किसके बीच में, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, ठीक है, तीन मैसूर वॉर हुए इस टाइम पीरियड के बीच में. एंड व्हाट विल हैपन, विच द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट, इसमें कौन हार गया, इस वॉर के अंदर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट हो गई. फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी नॉट विथ स्टैंड इन द कॉम्पिटिशन अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने खड़ी नहीं रह पाई. दस मेकिंग ईजी द एक्सपांशन ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे ही ये वॉर में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत ईजी हो गया अपना एक्सपांशन करना, ठीक है, क्योंकि उसके सामने कोई कॉम्पिटिटर अब नहीं बचा था, ठीक है. सो ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी जगह अपना एक्सपांशन किया ये तीन मैसूर वॉर को जीतने के बाद. दस एट द एंड ऑफ द बैटल ऑफ द पावर द पोर्टुगीज वेर लेफ्ट, और ये जो बैटल हो रही थी पावर के लिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, इसमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट हुई और सबसे सुपर पावर में एमर्ज हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी. और ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे ही अपने सुपर पावर में एमर्ज हुई तो पोर्टुगीज को क्या करना पड़ा, पोर्टुगीज वेर लेफ्ट, पोर्टुगीज को इंडिया से जाना पड़ा विद दीव दमन गोवा, कुछ ही जगह पर उनका कंट्रोल बचा था, बाकी सब जगह पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल आ चुका था. While the French had their trade center at Chandranagar, Mahe, Caracal and Pondicherry, meanwhile the Dutch had to leave forever. Now यहाँ पर हम डिफरेंट यूरोपियन नेशंस की बात कर रहे थे, तो व्हाट विल हैपन, देखो क्या हुआ, पोर्टुगीज हैव टू लेफ्ट, पोर्टुगीज को इंडिया से जाना पड़ा और कुछ ही जगह उनका रूल रहा जैसे दीव दमन गोवा. वाइल और फ्रेंच का क्या, फ्रेंच के अभी भी ट्रेड सेंटर कहाँ थे, एट चंद्रनगर, माहे, कैरेकल एंड पोंडिचेरी. वाइल और डच पीपल का क्या हुआ, डच पीपल हैव टू लीव फॉर एवर, उन्हें हमेशा के लिए इंडिया को छोड़कर जाना पड़ा. ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट बैटल ऑफ प्लासी. लेट्स सी द बैटल ऑफ प्लासी. व्हाट इज बैटल ऑफ प्लासी? सिराजुद्दौला was ruling over Bengal. Now at that time Sirajuddaulah ruling Bengal. He is the Nawab of Bengal. Due to his impulsive nature, he had some opponents in its states. उनके इम्पल्सिव नेचर की वजह से उन्हीं के स्टेट में कुछ उनके ओपोनेंट्स थे. यू नो इम्पल्सिव यानी जल्दी आवेश में आ जाना, किसी इंसान को हम कुछ कहते हैं वो जल्दी गुस्सा हो जाता है और रिएक्शन कर देता है, दैट इज इम्पल्सिव नेचर. तो सिराजुद्दौला के इम्पल्सिव नेचर की वजह से उन्हीं के स्टेट में उनके कुछ ओपोनेंट्स थे, ठीक है. ड्यूरिंग दिस पीरियड, और उनका ही जब टाइम पीरियड चल रहा था, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्ट अ फोर्ट्रेस अराउंड द ट्रेड सेंटर इन कोलकाता ऑन प्रीटेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है. ड्यूरिंग दिस पीरियड जब सिराजुद्दौला बंगाल को रूल कर रहे थे, उनके टाइम पीरियड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, दे बिल्ड अ फोर्ट्रेस अराउंड द ट्रेड सेंटर इन कोलकाता. उनका जो कोलकाता में जो ट्रेड सेंटर था उसके अराउंड फोर्ट्रेस यानी किलाबंदी करवा ली, वॉल बनवाते हैं ना, वो बनवा दी, ठीक है. ऑन प्रिटेक्स, क्या रीज़न दिया उसके लिए, ऑन द प्रिटेक्स ऑफ सिक्योरिटी रीज़न, के सिक्योरिटी के लिए बनवाई है. विदाउट टेकिंग द परमिशन ऑफ द नवाब. नाउ उन्होंने जो ये फोर्ट्रेस बनवाया था उनके कोलकाता ट्रेडिंग सेंटर के आसपास, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, नवाब ऑफ बंगाल जो कि सिराजुद्दौला थे उनकी परमिशन नहीं ली, ठीक है. अब ऑब्वियस है सिराजुद्दौला नवाब है बंगाल के, तो ऑब्वियसली ईस्ट इंडिया कंपनी को उनके पास से परमिशन लेनी चाहिए थी, बट ईस्ट इंडिया कंपनी हैवंट टेकन द परमिशन टू बिल्ड द फोर्ट्रेस अराउंड दैट ट्रेडिंग सेंटर. बट द नवाब सिराजुद्दौला डिस्ट्रॉयड द फोर्ट्रेस. देन आफ्टर विदाउट टेकिंग द परमिशन, उन्होंने बिना परमिशन के फोर्ट्रेस बनवा लिया था उनके ट्रेडिंग सेंटर के आसपास. तो इसका रिएक्शन सिराजुद्दौला ने क्या दिया, सिराजुद्दौला डिस्ट्रॉयड द फोर्ट्रेस. सिराजुद्दौला ने उस पूरे फोर्ट्रेस को जो उन्होंने बनवाया था उनके कोलकाता ट्रेडिंग सेंटर के आसपास, उसको डिस्ट्रॉय करवा दिया. व्हेन दिस न्यूज़ रीच मद्रास, चेन्नई, जब ये न्यूज़ मद्रास पहुंची जो कि चेन्नई में है, अ स्मॉल आर्मी ऑफ कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की एक स्मॉल आर्मी लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव,
reached Bengal in order to help the Kolkata Trade Center. जब ये न्यूज़ जो सिराजुद्दौला ने कोलकाता ट्रेडिंग सेंटर का मतलब आसपास जो फोर्ट्रेस बनवाया उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, ये न्यूज़ कहाँ पहुँची? रिच्ड मद्रास जो कि चेन्नई में है, वहाँ से एक स्मॉल आर्मी, कंपनी की एक स्मॉल आर्मी जिसको कौन लीड कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव लीड कर रहा था। वो कहाँ पहुँची? बंगाल में पहुँची। ठीक है, बंगाल में पहुँची किसकी हेल्प करने के लिए? कोलकाता ट्रेडिंग सेंटर को हेल्प करने के लिए। इन स्पाइट ऑफ द आर्मी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बीइंग स्ट्रॉन्ग, ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद दे रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ईजी टू डिफीट द नवाब्स आर्मी। ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी को रियलाइज हुआ कि इट वॉज नॉट ईजी, उनके लिए आसान नहीं है कि वो नवाब की आर्मी को हरा दे। सो द रॉबर्ट क्लाइव रिसोर्टेड टू ट्रीचरी, तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? एक चाल चलने की कोशिश की। अ कॉन्स्पिरेंसी वॉज प्लान इन ऑर्डर टू डिफीट द नवाब इन विच द नवाब्स कमांडर इन चीफ मीर जाफर एंड सेठ अमीचंद वेर कोएक्स्ट। तो उन्होंने क्या किया? एक षड्यंत्र रचा और जिसमें उन्होंने नवाब को हराने के लिए उनकी नवाब की आर्मी में जो कमांडर थे, कमांडर इन चीफ जिनका नाम था मीर जाफर एंड सेठ अमीचंद, उनको अपनी तरफ कर लिया, उनको अपनी आर्मी ज्वाइन करने के लिए ब्राइब किया, घूस दी उन्हें। ठीक है, ऑन द प्रीटेक्स्ट दैट नवाब इज अननेसेसरली हैरेसिंग द पीपल, अ वॉर वॉज डिक्लेयर्ड एट द ग्राउंड नियर अ विलेज नेम प्लासी। और किस वजह को बताकर एक वॉर छेड़ दिया गया ऑन द प्रिटेक्स्ट, ये कहकर के नवाब जो है सिराजुद्दौला वो उसके जो पीपल्स है उसे अननेसेसरीली हैरेसिंग यानी परेशान कर रहा है, और ये कहकर एक वॉर डिक्लेयर कर दिया गया। कहाँ पर? ऑन ए ग्राउंड नियर अ विलेज नेम प्लासी, एक विलेज है प्लासी, उसके पास एक ग्राउंड है, वहाँ पर ये वॉर डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, The Battle of Plassey was fought on 23rd June 1757 AD. Now the exactly time period is given to you. जो बैटल ऑफ प्लासी है वो कब लड़ा गया था? 23rd जून को 1757 AD में लड़ा गया था। The battlefield of Plassey is situated 38 किलोमीटर फ्रॉम मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल। ठीक है, जो बैटलफील्ड है प्लासी की वो कहाँ पर आई हुई है एग्जैक्टली? इट इज़ एग्जैक्टली इन वेस्ट बंगाल। मुर्शिदाबाद जो जगह है वहाँ से 38 किलोमीटर दूरी पर बैटल ऑफ प्लासी की फील्ड है। ठीक है, वो जगह है जहाँ पर ये बैटल लड़ा गया था। अकॉर्डिंग टू द प्लान मीर जाफर लॉस्ट द बैटल। अकॉर्डिंग टू द प्लान, जैसा रॉबर्ट क्लाइव ने कॉन्स्पिरेंसी की थी, ठीक है, उस प्लान के मुताबिक क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू द प्लान मीर जाफर लॉस्ट द बैटल। अभी मीर जाफर क्या थे? चीफ इन कमांडर थे उसकी आर्मी में सिराजुद्दौला के, तो वो वॉर हार गए। ठीक है, ही लॉस्ट द बैटल अकॉर्डिंग टू द प्लान, सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड। और जब वो हार गए तो सिराजुद्दौला की आर्मी भी हार गई। ठीक है, सो सिराजुद्दौला भी हार गए। ही लॉस्ट द बैटल ड्यू टू रॉबर्ट क्लाइव ट्रिचरी। द बैटल ऑफ प्लासी एंडेड इन जस्ट हाफ अ डे। अर्लियर जो बैटल्स हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा दिनों तक चला करते थे, जस्ट लाइक 6 to 5 days 4 days, बट विद द रॉबर्ट क्लाइव ट्रेचरी, जो षड्यंत्र रॉबर्ट क्लाइव ने रचा था उसकी वजह से जो बैटल ऑफ प्लासी कितने टाइम में ख़त्म हो गया था? बैटल ऑफ प्लासी एंडेड इन जस्ट ए हाफ डे। कितने टाइम पीरियड में? सिर्फ आधे दिन में ही खत्म हो गया था। The company as a result got a free hold over 24 प्रांगनास। तो जैसे ही बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिशर्स जीत गए और जीतने के साथ उन्हें कहाँ पर फ्री होल्ड कंट्रोल मिल गया? ब्रिटिशर्स को 24 प्रांगनास पर कंट्रोल मिल गया। एज पर द प्रॉमिस, मीर जाफर को जैसा प्रॉमिस किया गया था, ठीक है, ब्रिटिश ने उन्हें क्या किया? मीर जाफर वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल। मीर जाफर को क्या बना दिया गया? बंगाल का नवाब बना दिया गया। दस द फाउंडेशन ऑफ द कंपनीज रूल इन इंडिया वॉज लेड विद द बैटल ऑफ प्लासी। और इसी के साथ ऐसा माना जाता है कि जो फाउंडेशन ऑफ द कंपनीज रूल, जो कंपनी का जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रूल है, रूल की फाउंडेशन इसी बैटल के साथ इंडिया में स्टार्ट हुई। ठीक है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव यहाँ से स्टार्ट हुई इंडिया के अंदर, लेड विद द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी के साथ स्टार्ट हुई। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट कम्स द बैटल ऑफ
Buxar. Another battle after the Battle of Plassey. So you can see here, the Britishers made Mir Jafar the Nawab of Bengal under the different pretext. So as promised by the Britishers to Mir Jafar को जैसा promise किया था उसे क्या बना दिया गया, नवाब ऑफ बंगाल बना दिया गया. अंडर द डिफरेंट प्रिटेक्स ट्राई टू एक्सट्रैक्ट प्लेंटी ऑफ वेल्थ फ्रॉम हिम. नाउ ब्रिटिश आर ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट, वो मीर जाफर के पास से प्लेंटी ऑफ वेल्थ अर्न करना चाह रहे थे ब्रिटिशर्स. ठीक है, ड्यू टू देयर ग्रीड टू गेन मोर पावर्स. ब्रिटिशर्स की ग्रीड जो लालच है वो खत्म नहीं हो रहा था, उनको मोर एंड मोर पावर अर्न करना था. द ईस्ट इंडिया कंपनी मैनेज टू डिथ्रोन मीर जाफर एंड मेड मीर कासिम द नवाब ऑफ बंगाल. तो उन्हें मोर एंड मोर पावर गेन करना था, इसकी ग्रीड उनकी खत्म नहीं हो रही थी ब्रिटिशर्स की. तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, मीर जाफर को डिथ्रोन कर दिया, जो बंगाल के राजगद्दी से हटा दिया. एंड उसके बदले में किसको बंगाल का नवाब बना दिया, मीर कासिम, हु इज़ द सन इन लॉ ऑफ मीर जाफर. मीर जाफर का सन इन लॉ था वो, उसे बंगाल का नवाब बना दिया. नाउ व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. अभी मीर कासिम प्रूव टू बी मोर एम्बिशियस दैन मीर जाफर एंड दस बिकम अ थ्रेट फॉर द कंपनी. अभी उन्होंने ब्रिटिशर्स ने अपने फ़ायदे के लिए मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया. बट व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हुआ, देखो मीर कासिम तो मीर जाफर से भी बहुत ज़्यादा एम्बिशियस निकले एंड दस वो क्या बन गए, कंपनी के लिए एक खतरा बन गए थे. हैंस मीर कासिम वॉज रिमूव्ड एंड मीर जाफर वॉज अगेन मेड द नवाब. हियर मीर कासिम टूक रेफ्यूज विद द नवाब ऑफ ओध. ठीक है, नाउ मीर कासिम को क्या करना था, मीर कासिम को रिवेंज चाहिए था, इसीलिए वो किसकी रेफ्यूज में गए, रेफ्यूज विद द नवाब ऑफ औध. नवाब ऑफ औध के रेफ्यूज यानी उनके पास गए मदद के लिए. ड्यूरिंग दिस टाइम द मुगल एम्परर शाह आलम हैड कम टू औध. और इसी टाइम पीरियड में जो मुगल एम्परर है जिनका नाम है शाह आलम, वो कहाँ आए हुए थे, औध में आए हुए थे. ठीक है, so all the three of them decide to join hands and fight the company unitedly and thus declare a war. so उन तीनों ने मिलके मीर कासिम, नवाब ऑफ औध एंड मुगल एम्परर शाह आलम, उन तीनों ने हैंड ज्वाइन करके साथ में अपनी एक आर्मी बनाई और उन्होंने डिसाइड किया कि वो साथ मिलकर कंपनी का सामना करेंगे, कंपनी से बैटल लड़ेंगे. At Buxar, the East India Company fought against the United Army. At Buxar. Now what will happen next? At Buxar, the East India Company fought against the United Army. जो ये तीन लोगों की यूनाइटेड आर्मी थी उसके सामने एट बुक्सर जगह पर वॉर हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का यूनाइटेड आर्मी के साथ. ये यूनाइटेड आर्मी किसकी थी, मीर कासिम की, नवाब ऑफ औध एंड मुगल एम्परर शाह आलम, उन तीनों की कंबाइंड यूनाइटेड आर्मी थी. उसका वॉर हुआ किसके साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी का. कब हुआ, ऑन 22 अक्टूबर 1764 बैटल ऑफ बुक्सर हुआ. ठीक है, इन विच द यूनाइटेड आर्मी लॉस्ट. अगेन व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हुआ, देखो व्हाट वाज द आउटकम एंड रिजल्ट ऑफ द बैटल ऑफ बुक्सर. अगेन इन विच यूनाइटेड आर्मी लॉस्ट. जो यूनाइटेड आर्मी थी मीर कासिम की, नवाब ऑफ औध एंड मुगल एम्परर शाह आलम की, वो लोग हार गए. दस द कंपनी गॉट द दीवानी राइट्स. और जैसे ही वो हारे ये बैटल ऑफ बुक्सर, कंपनी को क्या मिल गया, गॉट द दीवानी राइट्स. कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गया. राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू टू बंगाल, बिहार एंड ओडिशा. बंगाल, बिहार, ओडिशा में से रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट मिल गया थ्रू द दीवानी राइट टू द ईस्ट इंडिया कंपनी. ओके, आई होप डियर स्टूडेंट माई दिस एक्सप्लेनेशन इज इनफ and satisfied to your studies. So we will study the rest of the chapter in my part 2 video. So keep watching my videos. Thank you so much. So I will be with my part 2 videos.